हेलो, वी हैव मुस्कान हेयर। मुस्कान मेंटर भी है और पार्टिसिपेंट भी रही है। मेडिटेशन सेशन भी किए हैं और डिवाइन यूथ भी किया है। तो मुस्कान, इफ यू कैन कंट्रीब्यूट टू द यूथ एंड टू द पीपल एंड टू एवरीवन, अगर मेडिटेशन सेशन के लिए या किसी चीज के लिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम। द फर्स्ट एंड ओनली थिंग अभी जो आई थी 5-7 मिनट पहले, whether it is meditation, whether it is divine youth, whether it is UPSC, whether it is any exam, anything in life, be it spiritual, be it materialistic, be it anything, right? And anything means anything to anything. वो सिर्फ खुद से खुद तक की यात्रा है. If you're doing any preparation, if you're writing any exam, if you're in school, college, anywhere on this earth, फर्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग इज कि वो हमारे खुद के लिए है. वॉट वी आर टूडे, आर वी बेटर देन येस्टरडे? दैट इज द ओनली कैलकुलेशन. कोई क्या बोलता है, किसने हमारी सक्सेस को, हमारे फेलियर्स को, हमारे जर्नी को क्या काउंट किया, नहीं किया, हमने टाइम वेस्ट किया उनके हिसाब से, नहीं किया, हम कहीं पहुंचे नहीं पहुंचे, सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, डजंट मेक मच सेंस टू यू टिल द टाइम हम ये अपने आप को बता दें कि जो हमारे एफर्ट्स थे, क्या दैट वाज सेटिस्फैक्टरी? आर वी एबल टू यू नो बाय द एंड ऑफ द डे, क्या हम अपने आप को खुद से खुद तक मिला सकते हैं, खुद के पास तक जा सकते हैं एट द टाइम व्हेन वी आर ऑफ टू स्लीप? या हम उस समय सोच रहे हैं नहीं नहीं चुपचाप सो जाते, कल की कल देखेंगे. बट अगर हम वो कॉन्फिडेंस से सो पा रहे हैं ना कि वाह चलो सो जाते, आई एम डन विद द डे एंड आई एम प्लान प्री प्लान्ड फॉर टुमारो, कि सुबह उठ करके मेरा टाइम उस प्लानिंग में नहीं वेस्ट हो. दिन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशियस वॉट एवर टाइम यू गेट अप, irrespective of you get up at 4, you get up at 8, doesn't matter. But when you get 1 hour to 2 hour from the time you get up is the most precious time of the entire hour, of the entire day, of the entire 24 hours. So if we are pre-planned for those 1 to 2 hours of the day while you're awake, and agar aapne wo 2 hours 1 hour utilize kar liya, that utilization could be customized. That utilization, everybody would have a different definition of that utilization, right? So again, wahan par one size fit all policy doesn't work, right? What works is ki what is customized well for me, what works good for me, what my schedule, what my responsibilities, what my things allow me to have, wo 2 hours. But that those 2 hours can only be utilized if you are planned before you are sleeping the previous night. So first thing which I have learned in a very long journey, I left my house for studies in 2009, and it is 2022, almost at the mid of 22. So the only thing which I have learned by my experience is you can only utilize your day if you are planning your next day today. But if I'm thinking I'll plan what I'm supposed to do tomorrow, if I'll plan it tomorrow morning, efficiency check kar lena. 24 hours mein you will lose 4 hours in just thinking what you have to do. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हमारा स्कूल का टाइम है या हमारी क्लास का टाइम है या हमारा कोचिंग का टाइम है. आई एम उसके अलावा के आवर्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो टाइम तो हमारे ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा. वो टाइम तो हमारे लिए कोई और प्लान करके दे रहा है. So that is not accountable. That is, we are bound. So I'm talking about the time of the hour which we have, which we are the regulator, that I have to decide what I have to do with that time. Right. And while I was in the journey of preparation, that was a very good amount of time, 2015 almost to 2019, 4 big, huge years, but very satisfactory. When I look back to those 4 years of my life, it's been beautiful, right? Though a lot many things were not there, but वो subtle में थी, वो subconscious में थी, उनका अर्ज था, उनका नीड था, उनके लिए दैट अंदर से वो थी कि वो चीज चाहिए, एंड दैट वाज कुछ करना है, कुछ तो है जो करना है, वोंट डाई लाइक दिस. तो एक चीज तो बहुत ही क्लियर थी तब भी और आज भी,
कि कुछ भी करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, बट ऐसे नहीं मरेंगे, राइट? एटलीस्ट एक इंसान के जीवन में तो परिवर्तन आएगा, बट वो तभी आएगा जब क्लैरिटी ऑफ माइंड है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, एंड हम अपने आप को मैनेज्ड और प्लान रखें. प्लानिंग हैज ऑलवेज टू बी डन इन 4 एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग. चाहे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन की प्लानिंग बात करें और चाहे हम लाइफ के प्लानिंग की बात करें, it can never have one type of planning. It always have 4 types of planning as per my experience of journey. Ek long term planning, very long term planning, that what I am expecting out of me maybe after 1 year, maybe after 4 year, maybe after 3 year. That is again customized, again individualistic, कि हम किस जर्नी पर हैं. सेकंड, उससे एक छोटी प्लानिंग, कि इफ अगर मैंने 1 साल का प्लानिंग करा है, तो देन व्हाट इज माय प्लानिंग फॉर कमिंग 6 months आउट ऑफ दोस 1 year. या अगर मैंने 3 साल की प्लानिंग करी है, तो व्हाट इज माय प्लानिंग फॉर 1.5 year, जस्ट हाफ ऑफ दैट. थर्ड प्लानिंग उसकी भी आधी, अगर 30 days की करी, 6 months की करी है तो 3 महीने, 3 महीने की करी है तो 1.5 महीना. एंड वन प्लानिंग हैज टू बी वीकली, कि मेरा इस वीक हाउ प्रोडक्टिव आई वुड बी. मैं पढ़ूं, मैं मेडिटेशन करूं, मैं डांस करूं, मैं जिम करूं, मैं वॉक करूं, मैं कुछ भी नहीं करूं, फिर भी मैं क्या करूं उस टाइम का. It's even better to not to do anything. It's even better to not to do anything, because then you're more planned. If you're not doing something, you're more planned, because then you're so much planning has been done and executed कि आपको कुछ externally plan ही नहीं करना पड़ रहा. सब कुछ मैकेनाइज्ड वे में, अपने आप प्लान वे में ही चल रहा है. You're not shuffling up, you're not struggling with your things, you're already sorted and planned, and जो भी चल रहा है वो already planned में चल रहा है. So it's time management can only happen if you are planned. Because आप प्लान करोगे क्या, टाइम को कैसे मैनेज करोगे अगर आपको यही नहीं पता कि मेरे गोल्स क्या हैं. Just dividing your 24 hour into some 3-4 sections of the day won't solve any purpose. What are you dividing those hours for is the call, right? So life has been a very beautiful journey up till now, and meditations and divine youth was actually, this was my first experience with divine youth also. So a lot many concepts got cleared there, which were there in the subtle form somewhere, but that could be a part of the session was not known to me, right? Because बहुत सारी ऐसी चीजें होती है which we know, हमें कहीं ना कहीं पता होती है, क्योंकि या तो वो हमारे डीएनए का पार्ट होती है, और या वो हम अपने लाइफ साइकिल से कैरी करते हुए ही आ रहे हैं. तो वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एज अ सीड है, पर वो सीड को पानी देना पड़ेगा, राइट? तो अगर हमारे अंदर एक बार गिटार सीखने का भी थॉट है, तो जस्ट इम्प्लीमेंट इट, बिकॉज इफ यू आर हैप्पी फ्रॉम द सोल, यूपीएससी तो यूं ही निकल जाएगा. एंड आई कैन गारंटी दैट यूपीएससी इज जस्ट अबाउट क्या नहीं पढ़ना है, राइट? और एनी अदर एग्जाम, बी इट जेई ऑल्सो, क्योंकि हमको ये तो सब बता देते हैं कि क्या पढ़ना है, पर हमको ये कोई नहीं बताता क्या नहीं पढ़ना है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्ट्रगल जस्ट शफलिंग बिटवीन कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है. एंड वी एंड अप रीडिंग, बिकॉज हमें ऐसा लगता है दुनिया में ये पढ़ रही है तो अपन भी यही पढ़ लेते हैं, ये कैसे छोड़ दें. तो यहाँ पर रैट रेस को ड्रॉप करना है. वट एवर योर इंस्टिंक्ट इज सेइंग, वट एवर योर जजमेंट्स आर सेइंग, whatever your inner calling is saying, just follow it and it will always be right. If it is coming from the depth of your heart, and if you are good कि हाँ करके अगर satisfaction हुआ, and if you can sleep, only parameter of right and wrong is if you can sleep peacefully after the end of the day, you are utilizing your time, you are utilizing your energy, you are utilizing whatever sources and resources you have. No other parameter, दोस्त क्या बोलते हैं, माता पिता क्या बोलते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर जर्नी. दूसरा वो ही देख पा रहा है. अब अगर आज मुझे कोई देखे तो कहेगा यूपीएससी तो क्लियर नहीं हुआ, पर वो 4 साल की जर्नी में क्या सीखा ये सिर्फ मुझे ही पता है. सो यू विल ऑलवेज बी योर ओन गार्जियन, योर ओन इवेल्युएटर. नोबडी कैन इवेल्युएट यू. सो सिया, दिस आंसर्स योर क्वेश्चन ऑल्सो. तुम खुद को खुद से इवेल्युएट जिस दिन करना बंद कर दोगी ना, लोग भी उस दिन तुम्हें इवेल्युएट करना बंद कर, क्योंकि लोग हमें उतना ही इवेल्युएट करते हैं या हमें उतना ही अप डाउन करते हैं जितना हम खुद को करते हैं. इफ वी अलाउ आवर सेल्फ टू डू इट, वी ऑलरेडी हैव अलाउड अदर्स टू डू इट फॉर अस. सो इफ यू वांट
कि कोई हमारे साथ ये नहीं करे तो हम पहले उसको खुद से करना अपने लिए बंद करते हैं, राइट? सो आई थिंक दैट इज इट। थैंक यू सो मच मुस्कान फॉर ब्यूटीफुल लाइफ लेसन्स। मैं से मैं की यात्रा, कौन से मैं से? छोटे से मैं से। हमने सोच रखा है हम सब कुछ हैं, उस छोटे मैं से विराट मैं की यात्रा। दैट वन स्टेटमेंट इज हैविंग दैट डीप मीनिंग। टाइम मैनेजमेंट का क्विक, एकदम क्विक वाले टिप्स तुम लोग को मिल गए टाइम मैनेजमेंट के। एंड एनीवन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड हैविंग अ सब्जेक्ट एज सोशियोलॉजी, शी इज वन ऑफ द वेरी very nice mentor, very good mentor. You can even share it with others, and she will put her heart, might and soul in that. That's what I can guarantee, right? और एक मैं मैसेज और मुस्कान आपसे लेना चाहूंगी कि व्हाट यू विल सजेस्ट टू डिवाइन यूथ, अगर कि डिवाइन यूथ का सेशन करके व्हाट अ पर्सन कैन एक्सपीरियंस एज अ टोटल पैकेज, अ चेंज। क्या लगता है आपको कि क्या चेंज फील कर सकते हैं ऑल ओवर इफ दे अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इज मेडिटेशन, वॉट एवर द एज इज? ये जो एज का पैरामीटर है मन में पेरेंट्स के, उसके एज के पैरामीटर का ना, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही कुछ आई वाज लिसनिंग टू समथिंग एंड आई कम अक्रॉस अ वेरी ब्यूटीफुल सेंटेंस, इसी एज पे एंड स्पिरिचुअलिटी पे ही वो था। और क्योंकि मुझे इस बात का अंदर से मुझे पता था कि मतलब एज डजंट मैटर विद स्पिरिचुअलिटी, इट डज, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, एंड द टू ऑफ द थिंग्स आर वेरी 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 intensely different from each other. When we talk about spirituality, we are talking about our inner self. But when we're talking about religion, we are talking about the external thing, right? So if we are talking about spirituality, it is like what is happening inside me, I know. I can read, I can feel, I can sense, right? The first thing in the morning, try and build up a habit कि उठकर कुछ नहीं करना, जहां पे सो रहे हो वहीं पर उठकर बैठ जाओ, एंड ट्राई, बिना एक्सटर्नल आवाजों की बात नहीं कर रहे, but how many voices, how many sounds can you hear? That will increase your concentration firstly. And दिन की बेटर शुरुआत हो सकता है, 1 दिन 2 दिन ऐसा लगे कि अरे क्या 10 मिनट दिन के खराब हो गए, इससे अच्छा तो उतनी देर में शावर ले लेते, बट इफ इट इज कंटिन्यूड इट विल हेल्प यू बिल्डिंग अप कॉन्सेंट्रेशन। तो एक्सटर्नली कॉन्सेंट्रेशन के जो तरीके होते हैं प्रिपरेशन वालों के या अदर लोगों के, वो नहीं होंगे। एंड डिवाइन यूथ, आई थिंक इट इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज मैंने जितना बाहर देखा है, इट इज लाइक कि दुनिया कहाँ जा रही है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम जो इमेजिन कर सकते हैं उसके भी एक्सपोनेंशियली कुछ, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, राइट? सो अगर हम अपने एंड से वी कैन बी दैट पिलर कि हम एक को भी अगर मोटिवेट कर सकते हैं, एक का लाइफ डायरेक्शन भी अगर हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें अपना करना पड़ेगा, बिकॉज जो चीजें हम फॉलो करते हैं उस चीजों का एक वाइब्रेशन डिफरेंट जाता है अगर हम सामने वाले को तब बताते हैं। अदरवाइज जैसे हमने कहा वैसे उसने सुना, राइट? तो आई थिंक डिवाइन यूथ should come every 3 months. I don't know about the universe calling, but it is the need of the hour, because our youth is in very bad hands right now. And I'm talking about a very, very sincere youth जो घर के बाहर निकलता है बहुत सारे aspirations के साथ, but end up maybe ending lives, maybe end up getting into some bigger issues, problems, maybe health, etc. कुछ एंडलेस पेन है, एंड उन्हें ये पता ही नहीं है कि करना क्या है, बिकॉज आई हैव विटनेस्ड इट वेरी 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 क्लोजली। वही चंद्रेश भैया ने अभी जो कहा ना, कृपा है, कृपा थी कि उस दलदल में रह करके भी और बस दलदल की छींटे भी नहीं पड़ी और बाहर आ गए। ऐसे दलदल में रहे हैं जहां पर हर समय यही लगता था अरे ये भी होता है, एवरी सेकेंड डे आई यूज्ड टू बी लाइक अच्छा ऐसा भी होता है, ओके। मतलब from college 2009 till 2019, 10 years, every second, third day, fourth day, I had to witness the situation. मतलब मुझे पिछले वाला एक्सपीरियंस से एक हाथ आगे जाता था, अच्छा ये भी होता है, ओके। मतलब you know, so life gives you a bigger picture when you see the world, and today's world is not so beautiful, but I think हम सब में वो capacity, वो capability है, and that's why we are sitting here together, that we can bring the change. और वो चेंज हम खुद से ला सकते हैं, पहले खुद के अंदर लाकर।
बिकॉज अगर हम यहाँ पर हैं यानी हमारे अंदर कुछ एक चीज ऐसी है जो हमें यहाँ पर लेकर आई है, राइट? हमारे अंदर कोई एक ऐसा डॉट है जो कुछ करना चाहता है, जो हमारे अंदर के उस पोटेंशियल को पहचानता है, चाहे हम अभी कॉन्शियस वे में सोचे नहीं हमने तो अभी तक क्या ही किया, लेकिन मेरे अंदर एक इनर कुछ एक कॉलिंग है जो ये जानती है कहीं ना कहीं, भले आई अग्री टू इट और आई डिसअग्री टू इट, but I know somewhere inside, deep inside me, that I have something, I can do something, कुछ तो कर सकते हैं, and that's why we all are here today. So utilize, we just have to make sure कि हम कितने लोगों तक ये पहुंचा सकते हैं, what all can be the means and medium, because it is the need of the hour. बहुत ही डिफरेंट डायरेक्शन में दुनिया जा रही है. थैंक यू सो मच मुस्कान. कुछ तो अंदर हो गया, एक शायद अश्रुपूरित मन हो गया और एक ग्रैटिट्यूड भी जा रहा है, और अब यूनिवर्स से प्रेयर है कि बस वो करा लें जो कराना चाहते हैं. बट आई नीड यू ऑल, जितने भी इस समय सेशन में हो ना, तुम लोग की शक्ति लगेगी. हम सब मिलकर तो चेंज ला ही सकते हैं ना, पहले अपने अंदर, और फिर जिसने 365 दिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, बिलीव मी बच्चों, तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी वाइब्रेशन से वो प्रकाश निकलेगा जो बहुतों को खींच लेगा. एंड यू नीड नॉट टू ब्रिंग देम टू मी, देन यू योरसेल्फ विल बी द मेंटर फॉर मेनी. वहीं के वहीं सॉल्व कर दोगे बहुत लोगों के लिए. हमें चेन क्रिएट करनी है, एक बहुत खूबसूरत चेन ऑफ सतयुग, एक बहुत खूबसूरत चेन ऑफ पॉजिटिविटी, एक बहुत खूबसूरत चेन जो चलती चली जाए. It's not, there is no one center. We all have to be there where we can manifest those change within us, and then वहां से ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा. वो कहते हैं ना कि फूल खिलता है तो इसलिए नहीं खिलता कि मेरी खुशबू कितनों तक जाएगी, वो तो बस खिल जाता है और खुशबू पहुंच जाती है. अब तुम सबको खिलना है. यू प्रॉमिस योरसेल्फ, यू प्रॉमिस योर मास्टर, योर इश्क, कि तुमको खिलकर दिखाना है और खिलकर वो बदलाव लाना है कि सतयुग अब आ जाए. अब और मेरा सतयुग जाग गया ना, अगर मेरे अंदर का सतयुग जाग गया तो वो एनफ है. बस हम बाकी दुनिया का तो नहीं पता, अपना तो जगा लें, और एक जागा हुआ इंसान पता नहीं कितनों को जगा सकता है. इसका हमें आइडिया नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्स देख रहा है. तो थैंक यू सो मच मुस्कान. और जस्ट वन थिंग मोर, एंड अगर रियल स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी है ना, तो पहले तो खुद को बदलना है. टू द बेस्ट ऑफ एफर्ट वी कैन पुट इन, टू द बेस्ट ऑफ थिंग्स वी कैन अडॉप्ट इन आवर लाइफ. एंड उससे ज्यादा, if we are aspiring for some exam, if we are doing matlab we are into anything and we are aspiring for anything to anything, we can do miracles there. So the real spirituality at the moment of the hour is कि हम जो कर रहे हैं ना उसमें अपना 1000% लगा दो. अगर कुछ बन गए उसी फील्ड में तो you will do miracles, और अगर नहीं बने तो उससे भी ज्यादा miracles करने की शक्ति रखते हो. So never think कि हम नहीं बने तो क्या होगा. हम नहीं बने तो हमें और ज्यादा पोटेंशियल होगा, क्योंकि हमको ये पता है कि गिरते हैं तो क्या होता है, और सामने वाला गिरेगा तो उसको कैसे उठाना है. मतलब वो गिर के ही पता चलता है, वो खड़े खड़े नहीं पता चलता. अरे और वहां यूनिवर्स के पास आपके लिए बेटर प्लान होता है ना. अगर आप बन गए तो आप एक अकेले बनोगे और अकेले जियोगे, लेकिन आपने वो सब कुछ जिया है और जी के वहां पहुंचे तो आप 100 को, 1000 को बनाने की शिद्दत भी तो रखते हो. एज एन इंडिविजुअल, मुस्कान इज चेंजिंग मेनी लाइव्स. शी इज टीचिंग, शी इज स्प्रेडिंग व्हाट शी हैज लर्नड इन यूपीएससी. तो अगर वहां चली जाती, सो वो 3 times, आई थिंक 3 times शी हैज क्लियर, राइट. तो वो क्लियर करने के लिए कितने एफर्ट्स लगे होंगे, कितनी शिद्दत लगी होंगे. एफर्ट तो कितने ही लगे थे. देयर वर टाइम्स, मतलब मुझे महीने याद नहीं है कितने महीने, आई हैव जस्ट स्लेप्ट फॉर 3 hours, और वो मेरे रूटीन का एक हिस्सा था. और वो इसलिए नहीं था कि मुझे किसी को बताना था, किसी को दिखाना था, मतलब कुछ भी नहीं था, पर एक जुनून था, और वो जुनून आज भी है अंदर. When it comes to this country ना, मतलब अंदर ऐसा लगता है कि बस क्या ही तो कर दो, मतलब माउंट एवरेस्ट से तो मैं ही चढ़ दूंगा अगर उससे कुछ होता हो तो. यूनिवर्स के पास बेटर प्लान होते हैं. सोचो अगर ये 1 अटेम्प्ट में क्लियर हो जाती तो यहाँ थोड़ा बैठ के इतने लोगों को मोटिवेट कर रही है. फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते तो आई कैन बेट आई हैव नेवर हैव बिकम व्हाट आई एम टुडे. I have never could have become what I am today. वो देखने में दुनिया की दृष्टि से, संसार की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से, रुतबे की दृष्टि से बहुत अमेजिंग होता, बहुत ही अमेजिंग होता कि कुछ दूसरा चीज नहीं हो सकती थी, मगर व्यक्तित्व की दृष्टि से जो आज है वो कभी नहीं होता. So life always have a bigger and better and best plans for you, what we cannot even think of. बस जो सिचुएशन है उसको स्ट्रेंथ से निकालना है. We have to pick up the lessons and learnings and spread what you've learned. Just don't keep it to your own self. भले ही वो ज्योग्राफी का एक
that current हो. थैंक यू सो मच मुस्कान, बहुत ही वाइब्रेशन आ गई, बहुत मजा आया, एंड आई होप कि यूथ इज लिसनिंग टू दिस, और यूपीएससी एस्पिरेंट तो उसको जरूर सुने। एंड मैं नीचे आई विल मेक श्योर दैट आई पुट द फॉर्म लिंक इन द कमेंट बॉक्स फॉर दिस, so that you, if you want to approach her, you can directly approach her, and she will be one of the very very beautiful mentor जो all over personality पे काम करने में आपको And help again, that करेगी। same thing which she has indirectly said, I will say it directly. मुझे पढ़ने वाले चाहिए, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कर सकता है, नहीं कर सकता, दे सकता है, नहीं दे सकता, doesn't matter. What matters is कि अगर तुम्हारे अंदर वो, if you have that to give that energy, if you can give your 100% for that preparation, be it any preparation, I am a call away. Whatever I have learned, I at least have that right to share. Thank you so much. So हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।